we have to keep it in mind that everything changes around. So not only is it the health parameters, but also maybe what we were eating previously might not be able to be digested in the same way it was being taken by our body previously. Correct. Your gut is directly related to your brain. Yes. आप जितना रिलैक्स होंगे उतना ज़्यादा आपका गट भी सही रहेगा. एब्सोल्युटली. जब वो इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है पेट के अंदर, तो हमारा जो अच्छा तत्व है खाने में, जैसे न्यूट्रिशन, B12, आयरन, फोलिक एसिड और बाकी सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो हमारा गट एब्जॉर्ब बराबर नहीं कर पाता. अच्छा. हमारे देश में अनदर मेजर प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड. ब्लॉकेजेस, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब को आप कैसे अप्रोच करते हैं? Actually, technology, I feel, is both. It's a bane and it's a boon. Okay. So boon, why I would say that because people are getting very actively involved in preventive health. वो यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे सिम्टम्स आने से पहले ही वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत सारे डायग्नोसिस डिजीजेस के करवा रहे हैं. सो प्रीवियसली वी यूज्ड टू से दैट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट करंटली इट शुड बी 10K steps a day keeps the doctor away. That's very well said. So if you include it into your lifestyle, so these three things about what you're eating, the amount of steps that you need to get per day, and most importantly your sleep schedule, so that your stress levels are at bay. अच्छी हेल्थ हर कोई चाहता है. आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी डॉक्टर से जिन्हें ओवर 12 years का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन, एंड शी इज़ वर्किंग एज अ फुल टाइम कंसल्टेंट फिजिशियन एट गोदरेज मेमोरियल हॉस्पिटल. She has done her training in acute stroke and neurology from UK. She has also been part of online platform Dhani via India Bulls, where she was awarded the best doctor for 2 consecutive years. She's done her fellowship in diabetes from Apollo Hospitals. Let's welcome Dr. Adrita Banerjee. Thank you so much. Hello, doctor. Hello, ma'am. How are you doing today? All good. Thank you so much for inviting me. Okay. हमें बताइए कि इंटरनल मेडिसिन एक्चुअली होता क्या है? Ma'am, internal medicine is one of those branches जिसमें we try to specialize in the internal physiological systems, basically all the systems combined: cardiovascular, gastroenterology, endocrine, related to diabetes, related to blood pressure, related to high cholesterol. So basically we specialize in the internal physiology of the organs, and from internal medicine you can branch into various specialities. So the higher education can be done based on individual specialities of your liking. So when for example a cardiologist, only after you have completed your MD in internal medicine you can branch off and do a super speciality or a DM in cardiology. So that is the basic postgraduate education that you require for specialization. अच्छा, ओके. बट आपने इंटरनल मेडिसिन एज अ स्पेशलिटी क्यों चुना? हाँ, this is a very good question, madam. Actually, regarding internal medicine, my only interest in it had developed because I like solving puzzles. And when patient comes to you, आपके पास patients जब आते हैं with various different symptomatology, they will not tell you कि कौन से particular organ issues they are facing, and it is like a blank canvas. So with the help of internal medicine specialization, you are actually going to be able to join the dots better. और वो पजल सॉल्व करने में आसानी होती है, एंड यू विल नो द पेशेंट एज अ होल. इट इज़ नॉट जस्ट ऑन वन पर्टिकुलर ऑर्गन, बट यू विल बी एबल टू गिव देम अ फुल बेसलाइन हेल्थ रिपोर्ट. So I personally feel that it is quite intriguing, and I was always drawn towards internal medicine. That's why. वाओ, मतलब आप बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होती है और उसके बारे में आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं to help the patients cure their diseases. Absolutely. So basically क्या होता है, very many times हमने देखा है कि when patient comes with basic symptomatology, the symptoms might be directing towards one particular organ, but they are all linked. There are many interlinked diseases that we see. अच्छा. And very different systems are involved. तो उनको लग रहा है कि उनको डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, बट इट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ बिग पैथोलॉजी दैट इज गोइंग ऑन इन द बॉडी, और वही मैनिफेस्ट करता है इन डिफरेंट ऑर्गन्स. So with the help of internal medicine, one thing that is very easy, or I would not say very easy, but very intriguing is this point, that आपको पता चलेगा कि where exactly the relations are happening, and possibly that the manifestation of the systemic diseases is because of one particular pathology that is happening in the body.
तो वो पेशेंट्स को भी आइडेंटिफाई करने में और एक्सप्लेन करने में आसानी होती है. सो दैट इज़ व्हाई आई फील इंटरनल मेडिसिन स्पेशलाइजेशन हैड caught my attention a I lot. think it's very interesting actually. Let's talk about certain facts. According to the research and studies, 11.4%, that is 101 million people in India, are diabetic. And 15.3, that is 136 million people, are pre-diabetic. How do you diagnose this and how can you reverse diabetes? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर टचिंग अपॉन. एक्चुअली जब डायबिटीज़ की बात आती है, मुझे लगता है कि वी आर जस्ट एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. हमको पता भी नहीं है कि द अमाउंट ऑफ पीपल दैट आर देयर इन आवर कंट्री जो अनडाइग्नोज्ड डायबिटिक है मैम एट द मोमेंट. अच्छा. इसका बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो साइलेंट होती है बॉडी में. आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स जिनके शुगर्स बहुत ही हाई रेंज पे रह रहा है, लेकिन उनको बेसिक कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं जो उनको पता भी नहीं चल रहा है इज इंडिकेटिंग डायबिटीज़. डायबिटीज़ के जो मेन सिम्टम्स हम लोग देखते हैं वो होता है पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया. मतलब बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन करने की अर्ज आना और बहुत ज़्यादा भूख लगना. अच्छा. ये तीनों चीज़ बहुत कॉमनली दूसरे कंडीशंस के साथ देखी जाती है. जैसे लोगों को लगता होगा कि आई एम गेटिंग डिहाइड्रेटेड तो मैं बार बार पानी पी रहा हूँ. हाँ. बार बार पानी पियेंगे तो यूरिन तो पास होगी. और भूख भी हम लोगों को लगता है कि हम लोग फिजिकल मेहनत कर रहे हैं तो भूख इसके लिए ज़्यादा लग रही है. बट डायबिटीज़ के बेसिक सिम्टम्स यही तीन हैं. अच्छा. बहुत सारे लोगों में बार बार इन्फेक्शंस होना, स्किन के इन्फेक्शंस होना, ये भी डायबिटीज़ दर्शाती है. लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि ये कोई अलग बीमारी उनको चल रही है. तो डायबिटीज़ पता करने का एक ही उपाय है कि आप जब आपके शुगर लेवल्स टेस्ट करें तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो हम बोलते हैं, दैट इज़ द ओनली वे इन विच यू कैन डायग्नोज डायबिटीज़ बेसिकली. अगर फैमिली हिस्ट्री है, जैसे फादर के साइड से या मदर के साइड से, फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन रिलेटिव्स को आपको डायबिटीज़ है ऑलरेडी परिवार में, उन लोगों में डायबिटीज़ होने का प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है. अच्छा. ऐसे लोग डेफिनेटली आगे से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं, जिसमें वो डिटेक्ट कर सकते हैं एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ कि आर दे गोइंग टूवर्ड्स डायबिटीज़ और नॉट. और वो टेस्ट सिर्फ 3 टेस्ट होती हैं जिसको करने से हमको पता चल जाती हैं. एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो आफ्टर डूइंग अ 12 आवर्स ऑफ ओवरनाइट फास्टिंग इंसान कर सकता है अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ब्लड देके. फिर होता है पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, विच इज़ आफ्टर एनी हैवी मील, स्पेशली लंच, 2 घंटे पोस्ट दैट वी हैव टू गिव द ब्लड एंड उसमें हम लोग डिटेक्ट करते हैं शुगर लेवल्स. और तीसरा होता है HbA1c. ये जो टेस्ट है ये बहुत कॉमनली अभी देखी जा रही है करना. प्रीवियसली इसके बारे में लोगों को नॉलेज ज़्यादा नहीं था. ये टेस्ट फास्टिंग और पीपी टेस्ट से थोड़ा अलग है. ये हमको 3 महीने के एवरेज शुगर को दर्शाती है. तो आपका प्रीवियस डे का मील क्या है उसके साथ ये टेस्ट डिपेंड नहीं करता है. ये डिपेंड करता है आपके 3 महीने का मील क्या है. सो दैट वे अगर पेशेंट आपको ये भी बोले कि मैडम कल रात को मैंने रसगुल्ला खा लिया था या आज सुबह का ब्रेकफास्ट में उपमा ज़्यादा हो गया था, दैट विल नॉट चेंज HbA1c. वो एवरेज शुगर है. सो यही 3 टेस्ट है अलॉन्ग विथ यूरिन रूटीन, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कोई पेशेंट प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है कि नॉर्मल रेंज पे है. अच्छा. एंड जो ये पर्टिकुलर टेस्ट हैं ये ईजिली किया जा सकता है एंड इट इज़ वाइडली अवेलेबल. तो मेरा तो डेफिनेटली ये खास रिक्वेस्ट रहेगा कि लोग अगर उनको लगता है कि वो डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री और एनी सिम्टम्स जो मैंने अभी डिस्कस किए, दे शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड ये 3 टेस्ट तो ज़रूर कराना चाहिए. अच्छा. बट जैसे कि आपने बोला कि फैमिली हिस्ट्री होगा डायबिटीज़ का तो चांसेस ऑफ डायबिटीज़ आर मोर. बट जिनको फैमिली हिस्ट्री नहीं है उनको कितने चांसेस हो सकते हैं डायबिटीज़? वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली डायबिटीज़ को हम कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होता है, जिसमें एक्चुअली कम्प्लीटली हमारा जो आत्रा है पैनक्रियास, वहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होती है बीटा सेल्स से. तो वो कम्प्लीटली बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो इंसुलिन का कंप्लीट डर्थ हो जाता है बॉडी में. इंसुलिन होता ही नहीं है इन टाइप 1 डायबिटीज़. तो उसमें इंसुलिन बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है. अच्छा. लेकिन जो 2 और टाइप्स के डायबिटीज़ होती हैं जिसको बोला जाता है मॉडी और लाडा. मॉडी टाइप की जो डायबिटीज़ होती है ये जेनेटिकल आती है. इसमें बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस हैं जिसमें से पर्टिकुलर 2-3 क्लासेस में जेनेटिकल प्रिडिस्पोजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पेशली मटर्नल साइड से, माँ की तरफ से. अच्छा. लाडा जो डायबिटीज़ है वो 1.5 डायबिटीज़ बोला जाता है, 1.5 डायबिटीज़.
वो वाले डायबिटीज़ में इट इज़ अ मिक्सचर, कुछ कुछ दर्शाती है टाइप 1 के जैसा फीचर, कुछ कुछ टाइप 2 के जैसा फीचर। ओके। और वो लाडा डायबिटीज़ भी डायग्नोज करने के लिए पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जो हम लोग स्पेसिफिकली पेशेंट टू पेशेंट बेसिस पे करते हैं। लेकिन आपने जो मुझे पूछा अभी रिगार्डिंग जेनेटिकल, टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है कि इवन विदाउट अ फैमिली हिस्ट्री पेशेंट माइट स्टार्ट डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा। बिकॉज ये वाली डायबिटीज़ मैम लाइफस्टाइल डायबिटीज़ होती है, अच्छा। जिसमें अगर हमारा लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस लेवल्स आर नॉट इन द राइट मैनर, पेशेंट्स कैन ईजिली डेवलप दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़। सो ओके। ये डायबिटीज़ में जेनेटिकल प्रिडिस्पोजिशन हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। ठीक है। सो आपने अभी बताया कि 2 तरह की डायबिटीज़ होती हैं। सो एक तो जेनेटिक होती है जो आपको विरासत में मिलती है, लेकिन जो नॉन जेनेटिक डायबिटीज़ होती है, क्या उसे रिवर्स या क्योर किया जा सकता है? अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मुझे काफ़ी बार पूछा जाता है इन माय क्लिनिक्स ऑल्सो। पेशेंट्स का सबसे पहले ये डाउट रहता है कि अगर मुझे एक बार डायबिटीज़ हो गया तो मुझे लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस लेने पड़ेंगे क्या, और मेरा डायबिटीज़ रिवर्स हो पाएगा क्या? एंड इन वेरी मैनी सेक्टर्स आई हैव सीन कि ये एक वे ऑफ प्रमोशन भी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में ये बोला जाता है, वी कैन रिवर्स योर डायबिटीज़, देयर आर मेडिकेशंस टू रिवर्स योर डायबिटीज़। तो ये बात पे आई डेफिनेटली वांट टू टॉक अबाउट। रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका डायबिटीज़ रेमिशन पे जाता है। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी क्योर नहीं है। अच्छा। अभी रेमिशन मतलब ऐसा कोई डायबिटीज़ जो एक्सट्रीम लेवल्स पे ना पहुंचा हो। सो अनकंट्रोल्ड शुगर्स अगर किसी को है, जो भी हम लोग HbA1c रिपोर्ट से पता कर सकते हैं, अगर अनकंट्रोल्ड शुगर्स है उसमें रिवर्सल मुश्किल है। लेकिन अगर कोई पेशेंट प्री डायबिटिक है या वो डायबिटिक हुए हैं बट देयर शुगर और HbA1c लेवल्स आर लेस देन 8%, ऐसे पेशेंट्स अगर स्ट्रिक्ट डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें और लाइफस्टाइल चेंजेस करें, जिसमें डेफिनेटली 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अ वीक विच कैन बी प्रोलॉन्ग्ड अप टू 300 मिनट्स पर वीक। तो एवरेज में इफ़ यू आस्क मी इट विल बी अराउंड 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स ऑफ डेली वॉकिंग अच्छा। अलॉन्ग विथ डाइटरी मॉडिफिकेशंस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट लिमिट करने की ज़रूरत है, रिफाइंड शुगर्स बिल्कुल भी नहीं, एंड इवन वो सारे फूड आइटम्स जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI ये ज़्यादा होती है, वो सारे फूड आइटम्स को अगर रिस्ट्रिक्ट किया जाए अपने डाइट में अलॉन्ग विथ द एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ उनको हेल्प कर सकती है उनके डिज़ायर्ड शुगर लेवल्स तक पहुंचने के लिए विदाउट मेडिकेशन। That's सो आई excellent. कीप हाँ। टेलिंग माई पेशेंट्स की डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के 3 क्लासेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डाइट एंड लाइफस्टाइल। अगर इससे आपका शुगर मैनेज नहीं हुआ देन वी टेक हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। Correct. अगर मेडिसिन से भी आपका शुगर मैनेज नहीं हुआ देन वी टेक हेल्प ऑफ इंसुलिन। Correct. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इज डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। Okay. उससे अगर हमारे शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज पे आ गए, स्पेशली HbA1c, देन वी कैन टर्म इट एज रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। Okay. बट इट इज़ नॉट स्टैटिक। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार रिवर्सल करा दी तो लाइफ लॉन्ग रिवर्सल लेवल्स पे ही शुगर रहेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फाइट। आप जैसा अपना डाइटरी मॉडिफिकेशंस करेंगे, आप जैसे आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे, स्ट्रेस कंट्रोल रखेंगे, एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी सो डिसिप्लिन। सो D फॉर डायबिटीज़ इज इक्वल टू D फॉर डिसिप्लिन, अच्छा। एंड इफ देर इज नो डिसिप्लिन देन D फॉर डेंजर। Oh, okay. So that is what diabetes is all about. If there is discipline, then sugars can be fantastic and people can actually achieve their dream sugar levels without doing any other things apart from just basic medications and diet and lifestyle modification. Very well said. Thank you. I think हमारे व्यूवर्स को काफ़ी मदद मिलेगी आपकी इस बात से। हमारे देश में अनदर मेजर प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड, ब्लॉकेजेस, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब को आप कैसे अप्रोच करते हैं? Okay, so heart diseases is again बहुत ही important topic coming next to diabetes only, because diabetes in itself can cause so many silent cardiac diseases that patients will not be able to identify जब तक ना वो हो जाए। हार्ट डिजीजेज आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन बहुत ही important point है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। बहुत सारे ऐसे हार्ट के सिम्टम्स हैं जो पेशेंट अपने डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं और वो भी वो समझ नहीं पाते हैं दैट इट इज़ पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द हार्ट। वन ऑफ द सिम्टम्स इज चेस्ट पेन। अभी चेस्ट पेन जनरली नहीं है कि वो लेफ्ट साइड पे ही होगा। देर आर सो मेनी एंजाइनल पेन्स जो आर्म में हो सकता है, जॉ में, नेक में हो सकता है, इवन बैक में हो सकता है। अच्छा। ड्यूरिंग एनी एक्सर्जन और फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा। दूसरी बात है फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर लेवल्स।
वो बहुत टाइम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि बीपी बढ़ रही है। इसमें एक्सेसिव स्वेटिंग होना, पैल्पिटेशन होना या घबराहट होना, वो भी एक कार्डियक सिम्टम हो सकता है। एंड बहुत स्टेज अगर आगे जाता है, जिनमें ऑलरेडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे डायबिटीज़, उनमें कभी कभी फ्लूइड जमना शरीर में, जैसे पैर में सूजन आना या थोड़ा भी चलने के बाद दम लगना, ये सारे कार्डियक सिम्टम्स होते हैं। ओके। तो हार्ट को फाइंड आउट करने के लिए कि मेरे हार्ट की कैपेबिलिटी अभी कैसी है, कैपेसिटी कैसी है, और वेदर माय हार्ट इज़ फंक्शनिंग परफेक्टली और नॉट, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में देर आर पर्टिकुलर टेस्ट जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले ईसीजी। ईसीजी जो टेस्ट है उससे हमारा हार्ट का अभी का रिदम क्या है, अभी का रेट क्या है, कौन से स्पीड से हार्ट चल रही है, बिकॉज नॉर्मल रेट 60 to 100 के बीच में होती है, तो हमारा रेट बराबर है कि नहीं। एंड जो अपने वेव्स के मॉर्फोलॉजी होते हैं, वेव्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बराबर है कि नहीं, ईसीजी सबसे पहले हमको ये दर्शाएगी। सो इट इज़ अ बेसिक स्क्रीनिंग। उसके बाद आती है 2D इकोकार्डियोग्राफी। ये वाली जो टेस्ट होती है ये हार्ट की सोनोग्राफी मानी जाती है। आई एक्सप्लेन टू माई पेशेंट्स दैट वे कि इट इज़ अ प्रोब ऑफ सोनोग्राफी जो आपके हार्ट में किया जाएगा। उसमें आप हार्ट का स्ट्रक्चर और फिर हार्ट के वाल्व्स होते हैं जो एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर पे ब्लड जाने के पहले वो डोर कीपर होते हैं। तो वाल्व्स का फंक्शनिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट को पंपिंग करने में मदद करती है, उसकी कैपेसिटी क्या है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं हमारे भाषा में। अच्छा। सो इजेक्शन फ्रैक्शन होना चाहिए 60% एंड अप। अगर उससे कम है उसको हम डिसफंक्शनल इजेक्शन फ्रैक्शन या लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन के नाम से जानते हैं। तो वो होता है दूसरा टेस्ट जो है 2D इको। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है स्ट्रेस TMT और ट्रेडमिल टेस्ट। अच्छा। ये टेस्ट के बारे में मुझे बहुत पेशेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रेडमिल टेस्ट के टाइम पे आप ट्रेडमिल पे चलेंगे विथ ECG प्रोब्स ऑन योर चेस्ट, और आपका डायरेक्ट लाइव ECG विल बी सीन वाइल यू आर डूइंग एक्सर्जन ऑन द ट्रेडमिल। ये जब किया जाता है उसमें अगर आपके हार्ट को स्ट्रेन पड़ता है, उस टाइम पे आपका हार्ट का मसल्स बराबर ब्लड फ्लो रिसीव कर रहा है कि नहीं, दैट विल बी डिटेक्टेड ऑन द स्ट्रेस TMT। तो अगर स्ट्रेस TMT पॉजिटिव होती है, दिस इज अगेन अ बिग कन्फ्यूजन पीपल हैव। हमेशा नेगेटिव टेस्ट है तो नॉर्मल है, हम ये मानते हैं। सो इन स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस नेगेटिव मतलब गुड, स्ट्रेस अगर पॉजिटिव होता है मतलब एट द टाइम व्हेन माय हार्ट इज इन बिग स्ट्रेन, उस टाइम पे मेरे कार्डियक मसल्स को ब्लड बराबर फ्लो नहीं हो रहा है। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, जिसको हम लोग हार्ट ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट। सो यही चीज़ को फर्दर इवैल्यूएट करने के लिए अगर स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आती है तो उसके बाद आती है एंजियोग्राफी की बारी, कोरोनरी एंजियोग्राफी। अभी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आजकल CT कोरोनरी एंजियोग्राफी भी आई है, जिसमें CT स्कैन के माध्यम से हार्ट के वेसल्स में ब्लॉकेज है कि नहीं उसका एक स्क्रीनिंग हो सकता है। एंड उसमें हम लोग कैल्शियम स्कोर देखते हैं। अगर पेशेंट को हाई स्कोर है और ब्लॉकेज का पॉसिबिलिटी है तो जाके एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की बात आती है। So there is a lot of chain of tests that can be done. Correct. But basic test everybody that should be undergoing on a health checkup is ECG and 2D echo. ये तो करना ही चाहिए, and जिनको हार्ट के सिम्टम्स हो रहे हैं उनको ट्रेडमिल टेस्ट मस्ट है। Okay. Thanks for the great advice. तो अद्रिता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, इसके बारे में कुछ बताइए। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम GI मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की ऐसी एक बीमारी है जो बहुत सारे टाइम पे मिसडाइग्नोज होती हैं इन डिफरेंट एरियाज़। क्योंकि सिम्टम्स इसके कैसे हैं, इधर पेशेंट को बहुत गट रिलेटेड सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे ज़्यादा एसिडिटी होना, बदहज़मी होना, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होना, बट कभी कभी डायरिया होना। अच्छा। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऐसे क्लासेस भी होते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है, जो डायरिया प्रीडोमिनेंट है। अच्छा, दोनों हो सकते हैं। हाँ। ओके। एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो माइंड से बहुत रिलेटेड है। सो पेशेंट अगर एक्सेसिव स्ट्रेस से गुजर रहे हैं एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल फ्रॉम देयर माइंड, दे कैन ऑल्सो हैव दीज सिम्टम्स ऑफ द गट। सो ये गट और ब्रेन बहुत साथ में जुड़े हैं। तो ये बहुत बार ऐसे देखा जाता है। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, हम लोग जब एग्जाम्स में जाते थे, वेन एवर वी यूज टू एंटर द एग्जाम हॉल या हमारा वाइवा होता था, हमको हमेशा लगता था कि पेट में मचोड़ आ रही है, वी शुड रन टू द लू। इसका यही कारण है कि वेन एवर ये फाइट एंड फ्लाइट बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारे गट का भी मोटिलिटी बढ़ जाती है।
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जो पेशेंट्स माइंड वाइज एंग्जाइटी से या नर्वसनेस से या डिप्रेशन से या कोई भी बाइपोलर मूड डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, उनमें देखा जाता है कि उनका बाउल हैबिट्स नॉर्मल नहीं रहता. अच्छा. उनको ऐसे डायरिया प्रेडोमिनेंट या कॉन्स्टिपेशन प्रेडोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है. एंड उन लोगों में बहुत टाइम पे हम लोग मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे एंटासिड, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो हम लोग बहुत ईजिली यूज़ करते हैं, ईजिली अवेलेबल भी है और लेते रहते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम ये PPI मेडिकेशंस लेते हैं, हमारे गट का जो फ्लोरा रहता है, हर एरिया का बॉडी में एक पर्टिकुलर फ्लोरा है. फ्लोरा मतलब उनके इनबिल्ट जो बैक्टीरिया रहते हैं शरीर में, अच्छा. हाँ. उनको हम गुड बैक्टीरिया मानते हैं. हाँ. तो ये गुड बैक्टीरिया का जो फ्लोरा है वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम ऐसे लेते हैं. ये गुड बैक्टीरिया अगर डिस्ट्रॉय होता है तो वो बैड बैक्टीरिया को बाहर निकाल नहीं पाएगा एंड द बैड बैक्टीरिया विल ग्रो इन द गट. तो इसी वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेशेंट्स को गुड बैक्टीरिया को नरिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेट में, और वो किया जा सकता है ओनली विथ गुड ईटिंग. अच्छा. अभी बाय गुड ईटिंग व्हाट आई मीन टू से इज एवरी डिफरेंट इंडिविजुअल इज एलर्जिक टू डिफरेंट फूड आइटम्स. सब कुछ सबको कभी सहन नहीं होता है. हाँ. सम पीपल आर एलर्जिक टू दाल और लेंटिल्स. कुछ लोगों को मिल्क से, लैक्टोज से इंटॉलरेंस है. कुछ लोगों को ग्लूटेन से. अभी बहुत सारा ये टॉपिक बाहर आया है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी क्या है. सो पीपल टॉक अ लॉट अबाउट ग्लूटेन कि वो कहाँ पे मिलते, वो कौन से फूड आइटम्स में है और उनको हम अवॉइड करें कि ना करें. सो लेट मी टेल यू कि ग्लूटेन एक ऐसी चीज़ है जो भी ऐसे बीमारियों को, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ये बीमारियों को वो प्रोपोगेट कर सकती है. तो ग्लूटेन क्या चीज़ है? वो एक इलास्टिन प्रोटीन है जो आपको कुछ आइटम्स जैसे आटा में, व्हीट में, मैदे में, सूजी, रवा एंड दलिया, ये सारे आइटम्स में मिलता है. इट गिव्स द स्टिकीनेस टू दोज आइटम्स. तो ग्लूटेन एक ऐसी चीज़ है जो गट में चिपक सकती है. और जिन लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, जहाँ पे भी गट में उनको ग्लूटेन मिलता है, बॉडी उसके अगेंस्ट एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कर देती है. अच्छा. जब वो इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है पेट के अंदर, तो हमारा जो अच्छा तत्व है खाने में, जैसे न्यूट्रिशन, B12, आयरन, फोलिक एसिड और बाकी सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो हमारा गट एब्जॉर्ब बराबर नहीं कर पाता. अच्छा. इसकी वजह से क्योंकि गट के अंदर सूजन आती है तो वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा अच्छा न्यूट्रिएंट. एज अ रिजल्ट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाता है. और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब बॉडी में होती रहती है, वो काफ़ी सारे फ्यूचर में जाके ब्रेन के डिजीजेस एंड नर्व्स के डिजीजेस भी इंक्लूड करा सकती है अपने बॉडी में. अच्छा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग अपने एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करें. तो इसमें करने का एक ही उपाय है, ऑन अ 24 आवर स्केल, वॉट एवर वी आर ईटिंग, हम लोग देख सकते हैं कि कौन से फूड आइटम्स है जो खाने के बाद हमको ब्लोटिंग सेंसेशन, जैसे पेट में ज़्यादा गैस भर जाना या बदहजमी होना या रिगर्जिटेशन, जो एसिड ऊपर आना जो हम बोलते हैं, ये सारे सिम्टम्स होने लगते हैं. अगर वो होता है तो वो फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई करके डाइट से वो अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अच्छा. एंड दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना. जिनको एक्सेसिव स्ट्रेस हो रहा है उनमें माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करना. बिकॉज व्हेन द माइंड कम्स डाउन, यू हैव अ गुड स्लीप, ऑटोमेटिकली द गट कम्स डाउन. एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से भी एक खतरनाक बीमारी होती है जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है. ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन्स होती है जनरली. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए कोलोनोस्कोपी आती है, जो एक स्कोपी होती है गट्स की, जिसमें हम लोग अंतरियों के अंदर देखते हैं अल्सर्स फॉर्म हुआ है कि नहीं. Okay. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में वो देखा नहीं जाता. बट जो पेशेंट्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली अपने गट का फर्दर इवैल्यूएशन कराना चाहिए. अगर उनको लगता है कि उनके कंडीशंस में सुधार नहीं आ रहा है, इवन विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन, तो फिर क्या करना है, उनमें अल्सर्स आइडेंटिफाई करके उनको राइट ट्रीटमेंट देना है. अदरवाइज दे वुड नॉट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम द कंडीशन. ओके. सो बेसिकली आपका कहना ये है कि योर गट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रेन. Yes. आप जितना रिलैक्स होंगे उतना ज़्यादा आपका गट भी सही रहेगा. Absolutely. और डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा रखना ज़रूरी है. और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सो देन डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस. Yes. Okay. Let's talk about fatty liver, another common problem with people, whether alcoholic or non-alcoholic. Again, very important topic to talk about, and I think very many people in India, at least 90% of the population, are bothered with it and very worried. हमारे जितने भी हेल्थ चेकअप्स ऑन अ रेगुलर बेसिस होते हैं,
एटलीस्ट इफ़ वी डू 10 पीपल्स हेल्थ चेकअप, 8 में से 10 लोगों का फैटी लिवर तो निकलने ही वाला है, हाँ। और वो बहुत लोगों को बॉदर भी कर रही है। सो फैटी लिवर का एक ऐसा बीमारी है जिसमें हम लोग अगर हमारे इनबिल्ट हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन बराबर नहीं हो रहा है, या हम लोग हमारे डाइट के थ्रू फैटी फूड इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा। सो इवन एट द स्टार्ट ऑफ इट ओनली लेट मी टेल यू कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ फैटी फूड खाएंगे तो फैटी लिवर होगा। हाँ। राइस इंटेक, रोटी इंटेक अगर ज़्यादा होती है तो कार्बोहाइड्रेट कैन ऑल्सो ब्रेक डाउन इट सेल्फ इंटू फैट्स एंड कैन गेट डिपॉजिटेड इन द लिवर। अच्छा। ट्राइग्लिसराइड बढ़ती है विद एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंटेक। सो जो लोगों ने डाइट मॉडिफिकेशन नहीं करी है और जिनमें ऐसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है और स्ट्रेस लेवल्स आर हाई, इन सारे लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ब्लड में बढ़ती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो होते हैं ये हमारे फैट सेल्स जो हैं बनते हैं, एंड लिवर के अंदर हेपेटोसाइट्स रहती हैं जो लिवर के सेल्स होते हैं, उसके अंदर वो डिपॉजिट हो जाती हैं। तो शुरुआत में जो होता है वो सिर्फ फैटी लिवर होता है कि फैट डिपॉजिट हो रहा है लिवर में, अगर वहीं तक सीमित रहता तो प्रॉब्लम और आगे नहीं बढ़ती। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली जब लिवर में ऐसा फॉरेन बॉडी आ जाता है विच इज़ फैट, लिवर इन्फ्लेमेशन चालू कर देता है, सूजन अपने अंदर, करेक्ट। जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीयटोहेपेटाइटिस। अच्छा। तो लिवर का इन्फ्लेमेशन हेपेटाइटिस अच्छा। वो जब चालू हो जाती है तब वो धीरे धीरे रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल कॉज में घुसती रहती है। वंस स्टीयटोहेपेटाइटिस सेट्स इन, उसके बाद लिवर के अंदर ऐसे कोलेजन का डिपॉजिट हो सकता है जो फाइबर्स होते हैं मसल फाइबर्स जैसे, और वो लिवर को हार्ड बना देती है। हमारा जो लिवर नेचुरल है वो स्पंज की तरह है, इट हैज़ टू बी सॉफ्ट एंड इलास्टिक। ये लिवर जब हार्ड बन जाती है उसको हम सिरोसिस बोलते हैं, जो एक्चुअली एंड स्टेज लिवर डिजीज के तरफ जाती है। करेक्ट। एंड लेट मी टेल यू, अल्कोहल इज़ नॉट द ओनली कॉज। ओके। आजकल के दिनों में जितना अल्कोहल रिलेटेड लिवर सिरोसिस देखा जाता है उतना ही फैटी लिवर रिलेटेड भी लिवर सिरोसिस देखा जाता है। अच्छा। ओके। एंड ये पूरा साइलेंट है, किसी को कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन जब फैटी लिवर एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेगा जिसमें लिवर एनलार्ज हुआ है, लोग शायद 2-3 सिंपल सिम्टम्स बोल सकते हैं, जैसे गैस ज़्यादा हो रही है और कभी कभी एक्टिविटी के टाइम पे हमारे राइट अपर पेट पे थोड़ा दर्द होता है। दैट इज़ ऑल दे विल कंप्लेन अबाउट। लेकिन आप जब करने जाएंगे उनका सोनोग्राफी, आपको पता चलेगा ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लिवर ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा। सो जब ऐसा फैटी लिवर होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम लोग वो स्टेज पे पहुँचे हैं कि नहीं, कि सिरहोसिस लेवल पे पहुँचे हैं कि नहीं, उसका एक ही उपाय है जो है फाइब्रो स्कैन। लिवर का एक ऐसा सोनोग्राफी जिसमें फैटी लिवर कितना मात्रा में है और वो रिवर्सिबल है कि नहीं वो दर्शा सकती है। अच्छा। सो डेफिनेटली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में जो लोगों को सोनोग्राफी के टाइम पे फैटी लिवर दिखती है उनको ARFI स्कैन या फाइब्रो स्कैन कराना चाहिए, जिससे उनको पता चले वो कहाँ है, कौन से लेवल पे है। एंड फैटी लिवर इज रिवर्सिबल। ओके। रिवर्सिबल विद वही मेरा वेरी क्वेश्चन गुड था। डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा। सो अगर ऐसे फूड आइटम्स हम लोग कंज्यूम करना स्टार्ट करें जो लिवर के लिए प्रोटेक्टिव है, एंटीऑक्सीडेंट दे लिवर को, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स है जैसे एवोकाडोज आर वेरी गुड फैट फॉर द बॉडी। ओके। ऑलिव्स, वॉलनट्स, स्वीट पोटैटो, फिशेस में भी रावस मछली, दीज आर गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रूवन फूड आइटम्स जो हम लोग अगर हमारे डाइटरी मॉडिफिकेशन में इंक्लूड करें डाइट में तो वो हमारे बॉडी में गुड फैट्स देंगे, नॉट बैड फैट्स। सो गुड फैट्स ऑलवेज हेल्प इन मेटाबोलाइजिंग द बैड फैट्स। अच्छा। ओके। तो हमारा फैटी लिवर ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ रिड्यूसिंग फैटी लिवर इज डूइंग एरोबिक एक्सरसाइजेस। अगर हम हमारे एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस डेली रिजीम में इंक्लूड करें देन दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कट द एब्डोमिनल फैट, और एब्डोमिनल फैट कट होगा तो फैटी लिवर ऑटोमेटिकली रिग्रेस करेगा। देर आर सो मेनी पेशेंट्स जिनमें मैंने एक्चुअली फैटी लिवर रिवर्स होते हुए देखा है। दे हैव कम अप विथ अ वेरी गुड डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लान, और उसके बाद जेन्युइनली विथ वेट रिडक्शन दे हैव कम टू अ वेरी गुड रिग्रेशन ऑफ फैटी लिवर। अच्छा। तो ये रिवर्स करना उतना मुश्किल नहीं है हाँ, वैसे? लेकिन अगेन डिसिप्लिन, हाँ। वो विद द डिसिप्लिन दैट वुड ईजिली बी एबल टू बी रिवर्स्ड। बट लोगों को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि फैटी लिवर में भी सिम्टम्स नहीं हैं, तो आप नहीं समझ पाएंगे फैटी लिवर हो रहा है कि नहीं, और अगर हो रहा है तो उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, बिकॉज अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है कि वो फैटी लिवर इरिवर्सिबल बन जाए। एंड वंस इरिवर्सिबल फिर लिवर का और कोई उपाय नहीं होता है, देन इट इज़ मेडिकेशंस फॉर लाइफ टाइम एंड कॉम्प्लिकेशंस फॉर लाइफ टाइम। ओके। बट ये लीवर से रिलेटेड कुछ अलग डिजीज़ेस होती हैं, जैसे
और यू कैन से द वायरसेस लाइक हेपेटाइटिस, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए. सो लिवर से रिलेटेड जो डिजीजेस और होती हैं हेपेटाइटिस जैसे, उसमें भी 2 टाइप्स के हेपेटाइटिस होते हैं. हाँ. जो एक फूडबोर्न हेपेटाइटिस होता है, जो Okay. मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक या अनक्लीन हैंड्स से ईटिंग या अनहाइजीनिक प्लेसेस से खाना खाने की वजह से होता है. अच्छा. जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हाँ. ये दोनों अक्यूट हेपेटाइटिस होते हैं. अच्छा. जो होता है थ्रू फूडबोर्न वायरसेस, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पकड़ लीजिए अराउंड 10 डेज 15 डेज में वो रिकवर हो जाती अच्छा, है okay. विद बेसिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. सो ए मतलब होता है and अनहाइजीनिक E. कंडीशंस हाँ. की वजह से. बट हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी जो होती है वो हाँ. थोड़ी डिफरेंट हेपेटाइटिस है. वो ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस है, जिसमें ब्लड टू ब्लड अगर ट्रांसमिशन हुआ या बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसमिशन हुआ, Okay. तो ये वायरसेस शरीर में घुसती हैं. और ये अच्छा. दोनों क्रॉनिक हेपेटाइटिस होती हैं. तो ये दोनों अगर वायरसेस शरीर में घुस गई तो ये अपने लिवर में डॉर्मेंट स्टेज में रह जाती हैं. अच्छा. एंड दे कैन लीड टू क्रॉनिक हेपेटाइटिस विच लीड्स टू सिरोसिस अगेन. अच्छा. एंड बहुत सारे लिवर कैंसर के पेशेंट्स ऑलरेडी आर पॉजिटिव फॉर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी. सो ये फ्यूचर में लिवर कैंसर तक कर सकती हैं. अच्छा. ये वायरसेस से प्रोटेक्शन तभी मिलता है जब देयर इज़ नो ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन. तो इवन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे भी ब्लड का चेकअप होना कि ये सारे वायरसेस नहीं हैं उसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. और ये एक बार शरीर में जाती है तो इसमें एंटीवायरल मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द वायरस इन योर बॉडी. अगर वो भी टाइम से चालू नहीं हुआ तो परमानेंट लिवर डैमेज और लिवर कैंसर ये दोनों भी होने के चांसेस रहते हैं ये वायरसेस से. So it is a well-known fact, Dr. Adrita, कि most of the Indians are protein deficient. लेकिन according to one of your articles in Times Now, आपने कहा है कि increased intake of proteins can lead to uric acid and other health problems. Yes, ma'am. That is one of the articles that I had written for Times Now regarding this particular topic. ये सही है. प्रोटीन इनटेक सब लोगों में ज़्यादा लेना है ऐसा नेसेसरी नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन योर एज, योर बॉडी टाइप, and why is it indicated for you to take more proteins. Like for example जो जिम गोइंग हैं, जिनको मसल बिल्डिंग करना है, उनमें प्रोटीन इनटेक अगर आप ना बढ़ाएं, so they are losing the muscles already when they are doing excessive physical activity. Correct. तो उसमें you will not be able to build up the muscle. वो करने के लिए प्रोटीन इनटेक अगर बढ़ाना पड़े, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. बट सबको प्रोटीन ज़्यादा खानी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी. अच्छा. प्रोटीन खाने के टाइम पे हमको 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है. एक, हमारा किडनी फंक्शंस कैसा है, बिकॉज ये प्रोटीन जाएगा किधर, वो मेटाबोलाइज होगा बॉडी में और किडनी से ही बाहर निकलना है उसको. सो अगर मेरे किडनीज कमज़ोर हैं और हम ज़्यादा प्रोटीन्स खा रहे हैं, वो मेरे किडनी डिजीज़ को प्रोपगेट या बढ़ा सकती है. नंबर 1. नंबर 2, हमको देखना है कि हमारे यूरिक एसिड लेवल्स क्या हैं. बहुत सारे लोगों को इनबिल्ट यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम्स रहती है. अच्छा. उनमें अगर प्रोटीन इनटेक हमने बढ़ा दिया, वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर यूरिक एसिड ही बनाती है, तो वो यूरिक एसिड उनके ब्लड यूरिक एसिड लेवल्स को बढ़ा देती है. और एक बार यूरिक एसिड बढ़ गई तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं, जैसे यूरिनरी स्टोन्स बनना किडनी के अंदर. दूसरा है जॉइंट पेन, बिकॉज यूरिक एसिड कैन कॉज आर्थराइटिस विच इज़ नोन एज गाउटी आर्थराइटिस. इसमें ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होके उधर सूजन कर देती है. अच्छा. और लोगों को क्रॉनिक जॉइंट पेन और आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाती है. इसको कम करने के लिए द ओनली वे पॉसिबल इज़ टू गेट योर लेवल्स चेक्ड. आप जब प्रोटीन इनटेक बढ़ाने वाले हैं उसके पहले आपका बेसलाइन ब्लड रिपोर्ट होना चाहिए कि आपके किडनी का फंक्शन कैसा है, आपका किडनी का एक्सक्रीशन पावर कैसा है, निकलने का शक्ति. एंड दूसरी बात है कि आपके यूरिक एसिड का बेस लेवल क्या है. अगर ये तीनों परमिट करता है आपको हाई प्रोटीन इनटेक करने का, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड डू प्रोटीन इनटेक. दूसरी बात क्या है कि प्रोटीन्स में बहुत सारे टाइम्स पे यू हैव हर्ड अबाउट कीटो डाइट. आई वांट टू टच अपॉन दिस ऑल्सो. अभी कीटो डाइट में पीपल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट. दे से वेट लॉस इज मोर प्रोपगेटेड और दे आर एबल टू रीच दैट टारगेट BMI. वो बहुत ईजिली वो रीच कर पा रहे हैं. लेकिन कीटो डाइट में वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ एनिमल फैट्स. उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ आवर किडनी फंक्शंस, व्हाट इज़ आवर बेसलाइन लिपिड लेवल्स, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होती हैं. सो कीटो डाइट के पेशेंट्स में मैंने ये बहुत बार देखा है कि उनमें यूरिक एसिड बढ़ती हैं, किडनी फंक्शंस डिटीरियोरेट हो सकती हैं और उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई हो जाती हैं. अच्छा. वो ले रहे हैं फैट कट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली इट इज़ लीडिंग टू ब्लड फैट्स. राइट. सो डाइट मॉडिफाई करने से पहले या कोई भी पर्टिकुलर डाइट प्रोटोटाइप फॉलो करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग अपने बेसलाइन रिपोर्ट्स करवाएं एंड उनको पता चले कि वेदर दैट इज़ गुड फॉर देम और नॉट. राइट.
या दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बिकॉज ये लोग तो सोचते ही नहीं है, बस डाइट्स फॉलो करने लग जाते हैं. यस, बट आजकल मैंने ये ट्रेंड थोड़ा चेंज होते हुए देखा है. आई हैव सीन दैट वेन एवर पीपल आर स्टार्टिंग अ पर्टिकुलर डाइट और कोई एक्सरसाइज रिजीम, तो द पीपल फ्रॉम द जिम ट्रेनर्स एज वेल एज द डाइटिशियंस, दे आर पर्टिकुलरली आस्किंग देम कि आप एक फिजिशियन कंसल्ट कराइए, आपके रिपोर्ट्स करा लीजिए और एक बार फिजिशियन से आप ग्रीन सिग्नल ले लीजिए कि येस यू आर एबल टू डू दिस डाइट और नॉट. So I have seen that many people come up with that as the reason for their health checkup also. But हमारे लिए as long as you're doing the health checkup and you're finding out what your base reports are, the job is done. Correct. So whatever the reason is, they should definitely be looking at their baseline reports. Definitely. Dr. Adrita, there has been a lot of talk about lifestyle medicine lately. So how do you incorporate that in your general life? Okay, so lifestyle medicine is not a new term, ma'am. Basically metabolic disorders जो मैं आपको बोल रही थी in the start of the talk, कि metabolic disorders क्या होती हैं जिसमें if the patient is not having a very good dietary life, their body is absolutely sedentary, and there is a lot of stress levels. All these amalgamated together or combined together can lead to metabolic disorders. और वो हर person में नहीं होता है. They already have a genetical predisposition or genetical linking towards these diseases. तो अगर आप मुझे पूछें कि ये कौन से डिजीजेस हैं, ये वो 4 बेसिक डिजीजेस जो हम हमेशा बात करते रहते हैं: डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हार्ट. तो ये चारों चीज़ जो इंटरलिंक्ड है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आती हैं और इनको भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के साथ सिनोनिमस वे में हम देख सकते हैं. अच्छा. सो व्हाट डज इट मीन? अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो हमारा जो इंटेक है फूड का, दैट वी आर नॉट एबल टू बर्न आउट. राइट. एज अ रिजल्ट इट इज़ गेटिंग डिपॉजिटेड इन योर बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इफ दिस वॉट एवर यू आर ईटिंग, सो वो बोलते हैं ना, यू आर वॉट यू ईट. आप जो खा रहे हैं, you have to be so watchful and so thoughtful about it, because यही सारी चीज़ें हैं which is going to all combine together in your body and cause the diseases in the future. Lifestyle diseases को modify करने का only way है कि first हमको identify हो कि वो diseases हमको है कि नहीं. तो अगर family में हम लोग जैसे family history पूछते हैं हर patient को, तो family में ये disorders होने का अगर कोई भी background है, जैसे कार्डियक डिसऑर्डर्स हुआ है यंग एज में, या स्ट्रोक हुआ है यंग एज में, दैट इज़ ब्रेन स्ट्रोक, या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ परिवार के दोनों साइड से आ रही है, मैटरनल या फादर के साइड से, ऐसे पेशेंट्स में हेल्थ चेकअप के थ्रू यू कैन फाइंड आउट कि आप बॉर्डर पे हैं कि नहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के, या यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डेवलपिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिलती है कि मैडम मेडिकेशंस की क्या ज़रूरत है, हम लोग डाइट मॉडिफिकेशन करके नहीं कर सकते हैं क्या? सो वो चॉइस आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट कि पेशेंट्स अपने डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दें. हम लोग जब मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं, हम लोग बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करते हैं विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. पूरा वर्ल्ड वो गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है. इट इज़ नोन एज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. तो वो गाइडलाइंस में क्लियरली बताया गया है कि कौन से लेवल तक हम लोग डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ट्राई कर सकते हैं और कौन से लेवल के बाद हमको मेडिसिन का सहारा लेने की ज़रूरत है. सो अगर मैंने एक कोलेस्ट्रॉल टैबलेट ऐड किया, क्वेश्चन मुझे आता है कि ये जिंदगी भर का हो गया. ये मैंने देखा है बहुत लोगों को, इवन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने के लिए लोग बहुत ही रिलक्टेंट होते हैं, कि बोलते हैं कि ये मुझे हर टाइम थोड़ी लेनी पड़ेगी, मुझे तो सिर्फ 1 महीने के लिए ही लेनी है. एंड दे स्टॉप इट ऑल्सो. ये और भी ज़्यादा डेंजरस होता है कि विदाउट अ मेडिकल सुपरविजन वो मेडिकेशंस को अपने बॉडी से हटा देते हैं. सो वो नहीं समझ पाते हैं कि जो हमने प्रोग्रेस किया था इतने दिन, वी आर गोइंग बैक टू स्क्वायर वन. हम लोग वापस वही लेवल पे पहुंच रहे हैं व्हेन वी स्टॉप मेडिकेशंस लाइक दिस. करेक्ट. सो ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, ये राताराती ठीक होने वाले डिसऑर्डर्स नहीं हैं. आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म की दिक्कत है, आपका कोलेस्ट्रॉल बराबर से नहीं मेटाबोलाइज हो रहा है, इसीलिए तो ब्लड लेवल्स बढ़ रहे हैं. आपने किया मॉडिफाई आपका डाइट लाइफस्टाइल किया, लेकिन एक लेवल तक 10% तक आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसमें कम होगा. लेकिन अगर जेनेटिकल भी है साथ में और आपके लेवल्स बहुत हाई हैं, आप कितना डाइट कर लोगे? कुछ तो खाना पड़ेगा, सिर्फ हवा लाइक लिटरली वी कैन नॉट जस्ट स्मेल एयर एंड लिव. और वो लेवल ऑफ एक्सरसाइज भी आई थिंक लोगों की है नहीं, कितना कर पाएंगे? बिकॉज सी एवरीबडी इज हैविंग अ वेरी हेक्टिक लाइफ शेड्यूल, एंड इफ यू आर एबल टू टेक आउट 1 hour फ्रॉम योर लाइफ टू डू अ फिजिकल एक्टिविटी, वो मैक्सिमम आप कर सकते हैं. उससे ज़्यादा इफ़ यू वांट टू डू इट, देन यू विल हैव टू कट अप ऑन समथिंग, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग कट अप ऑन करते हैं वो है स्लीप. सो हम लोग सुबह 5 बजे उठ के अगर एक्सरसाइज करने लगे, लेकिन सोए सिर्फ 4 घंटे हैं, उससे बॉडी को क्या फ़ायदा पड़ेगा? बिकॉज माई स्लीप इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एज मच एज माई एक्सरसाइज इज़.
जो If लोग I'm- नहीं समझते if I'm not healing, because sleep क्यों ज़रूरत है? Everybody asks me कि डॉक्टर 5 घंटे की नींद enough है क्या? जब लोग बोला जाता है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours, बिकॉज ये नेचुरली हम लोग लाइफ आफ्टर लाइफ देखे जा रहे हैं, यू डोंट गेट द टाइम, यू कैन नॉट रिजुविनेट योर सेल्स, करेक्ट योर डैमेज्ड सेल्स आर गेटिंग रिपेयर्ड, योर बॉडी इज गेटिंग रिजुविनेटेड विथ रेस्ट. ये रेस्ट अगर हम ना दे के उसको कट शॉर्ट करके हम लोग 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करने लगे, 2 घंटा हमको निकालना है, you will be tired, your Yeah. mind will be fatigued. तो इससे we are not going to get that फायदा. Lifestyle disorders में I feel that every individual should first identify कि वो कितना घंटा अपने लाइफ स्केड्यूल से निकाल सकते हैं फॉर एक्सरसाइज, एंड डिलीजेंटली वो रेगुलरली किया जाए. बहुत सारे टाइम्स पे आई हैव सीन कि मैडम ये 2 हफ्ता ना हुआ नहीं, ये 4 हफ्ता हुआ नहीं. अगर आप ये 45 मिनट्स निकाल रहे हैं, दैट हैज़ टू बी एवरी डे, मंडे टू संडे विदाउट अ ब्रेक. Then you will be able to give your cells the physical activity it requires. Also your heart, because हम लोग जब exercise करते हैं, we also try to moderate our heart rate to a baseline slow heart. If we are exercising regularly, हम लोग जब anxious होते हैं या when we are at a high power exertion of our body, उस टाइम पे heart rate बहुत boost नहीं होगा. बिकॉज हमारे हार्ट को पता है कि हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करके हार्ट को सेंसिटाइज करवा दिए हैं. सो हार्ट रेट भी एक लेवल तक ही बढ़ेगा, इट विल नॉट शूट अप टू एबनॉर्मल लेवल्स. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम हार्ट को सेंसिटाइज करा सकते हैं विथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी. इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है. और दूसरी चीज़ लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू फाइंड आउट कि आपके डाइट में कहाँ पे शॉर्टफॉल्स हैं, और वो चीज़ों को आपके डाइट से एलिमिनेट करना. स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, आजकल मिलेट्स बहुत आया है मार्केट में. देयर इज़ ज्वार, बाजरा, नाचनी, राजगिरा, रागी. These are millets which can be inculcated in your diet, on your regular diet, जिसमें हम लोग wheat के साथ mix कर सकते हैं millets को, and we can make multigrain chapatis. Many patients can even ignore the wheat completely. They can have jowar bhakris or nachni rotis. Correct. Even ragi dosas. Easily that can be included, and ragi is a very rich source of calcium also. So when these things are included in your diet, you can automatically cut down the carbohydrates. Correct. Carbohydrates cut होंगे तो of course many different diseases will be coming under control. So I feel lifestyle disorders में ये most important है. Identify it and work towards it. So diet और lifestyle is the key to good health. Yes. डॉक्टर अद्रिता, मुझे बताइए, how has technology changed your practice in medicine? That is a very interesting question. Actually, technology I feel is both. It's a bane and it's a boon. Okay. So boon, why I would say that because people are getting very actively involved in preventive health. वो यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे सिम्टम्स आने से पहले ही वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत सारे डायग्नोसिस डिजीजेस के करवा रहे हैं. लेकिन बेन मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ अननेसेसरी अटेंशन गोइंग इन टू डिटेल्स इन द बॉडी विच प्रॉबली कैन बी इग्नोर्ड एट दैट स्टेज. वो शायद हम लोग तभी अगर ना कंसिडर करें तो भी चलता है, बिकॉज दैट बिल्ड्स अप अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी. ये हेल्थ रिलेटेड एंग्जाइटी इज़ अ वेरी बिग थिंग. Correct. So recently a very important thing has come into picture. It is called genetical evaluation, जिसमें metabolic disorders जो ऐसे non communicable diseases होते हैं, जैसे hypertension, diabetes, even arthritis, बहुत सारे अलग अलग बीमारियाँ, ये सब आप जेनेटिकल एक फुल एक मैपिंग कर सकते हैं आपके बॉडी का थ्रू योर ब्लड टेस्ट. अच्छा. और वो करके आप कोई भी एज में बता सकते हैं कि आपको फ्यूचर में जाके ये डिजीजेस कब होंगे, कौन से उम्र के बीच में होंगे, एंड वेदर यू आर, कितना चांसेस है आपका होने का, हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है कि लो रिस्क है. वाओ. दैट इज कॉल्ड जीनोमीटर. इट इज एक्चुअली अ जेनेटिकल मेकअप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी. आई हैव सीन पेशेंट्स 15 years, 14 years, 16 years who are getting it done. बून क्यों है? क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये सारे प्रॉब्लम्स हैं. करेक्ट. बेन क्यों है? मतलब वो 16 साल की उम्र से 50 साल की बीमारी के बारे में सोच रहे हैं. अभी 16 में यू आर गेटिंग टू नो कि आपको 50 साल में कौन सी बीमारी होने वाली है. इससे तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी ना. बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, और उससे भी बड़ी बात क्या है कि दे विल बी सो थॉटफुल अबाउट एवरी लिटिल निटी-ग्रिटीज. चीज़ें जो शायद इफ़ वी डोंट थिंक सो मच एट द एज ऑफ 16 इट विल नॉट मैटर, बट हम लोग वो सोचते रहेंगे. सो ये एक एंग्जाइटी प्रोन इशू हो सकती है, और बहुत सारे लोग इसको अच्छे से नहीं लेते हैं. जैसे मेनी ऑफ अस वी नो दैट व्हेन वी गो टू द डॉक्टर और व्हेन वी गो टू अ हॉस्पिटल वी हैव एन इनबिल्ट एंग्जाइटी. ऑल ऑफ अस नो अबाउट वाइट कोट हाइपरटेंशन के डॉक्टर को के कैबिन में जाके बीपी बढ़ जाती है. सो इन सच केसेस इफ़ यू आर गिविंग देम डिजीजेज जो 50 साल 60 साल में हो सकता है, एट 70 यू हैव अ रिस्क ऑफ हैविंग दिस. 70 वी आर 16. सो
that period I feel is going to be a little difficult. Otherwise, the use of technology for this is very good when it comes to cancers. अच्छा. Because if you know, there is an incident जिसमें ऐसे genetical testing करते वक्त a family, 3-4 girls, they have come to know that they were actually predominantly inheriting a gene called MEN, which is multiple endocrine neoplasia gene. So जब वो होता है, मेन जीन अगर आपने इनहेरिट किया तो देर आर सर्टेन कैंसर्स ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स जो होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं. अच्छा. सो कैंसर में क्या होता है ट्रीटमेंट में, जितना अर्ली डिटेक्शन हो उतना बेटर फॉर रिकवरी. राइट. अर्ली डिटेक्शन में बिफोर द स्प्रेड हैपन्स विच इज़ मेटास्टेसिस, इफ़ यू आर एबल टू पिक अप द पर्सन, इवन लोकल स्प्रेड भी ना हो तो उसमें भी सबसे ज़्यादा रिकवरी चांसेस हैं एंड सबसे ज़्यादा डिजीज़ फ्री लिविंग के चांसेस हैं. सो इसमें वो बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस होगा. लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, सबको पता है हम ज़्यादा स्वीट्स खाएंगे वील पुट ऑन वेट, हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, फ्यूचर में जाके वो मेटाबोलाइज होकर डायबिटीज़ हो सकता है. सो ये सारी चीज़ें हमको पता है, वी ऑलरेडी नो इट. आई रादर फील दैट इफ़ वी यूज़ द टेक्नोलॉजी टू डू रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, that would rather be better. And what are those intervals? हाँ, so that is another very good question. I feel after generally मैं तो पहले बोलती थी कि 40 years के बाद ही आप हेल्थ चेकअप कराइए. अभी it is different after COVID because you must have come to know that there are so many people who are at a younger age are suffering from cardiac disorders, heart attacks, and they are just having sudden cardiac death. तो वो थोड़ा scary है. हाँ. So considering that, what I feel that after the age of 30 only you should start doing your health checkup. अच्छा. And it should be yearly. Yearly health checkup if you are having no problems, like for example आपने आपका first baseline health checkup कराया और कराने के बाद आपने देखा things are all good, all the organs are performing well and my baseline reports are good. You maintain your lifestyle the way you are maintaining it and repeat it after a year. But for example पकड़ा गया कि diabetes है, which can be any age. अगर पकड़ा गया कि diabetes है, then it is a must that every 3 monthly HbA1c, which is the glycosylated hemoglobin का testing हो. अगर आपका HbA1c टारगेट लेवल्स हिट कर रहा है तो ही देर इज अ चांस दैट आपके एंड ऑर्गन डैमेजेस नहीं होंगे. एंड डायबिटीज कैन डैमेज ऑल ऑर्गन्स, द किडनी, द आईज, द हार्ट, द ब्रेन, द लिवर, एवरीथिंग. सो इफ यू नो फ्रॉम बिफोर दैट आप हिट नहीं कर रहे हैं आपका टारगेट, सो यू विल बी एबल टू मॉडिफाई अनदर 3 months एंड देन यू कैन सी अगेन. सो उनमें ये 3 monthly HbA1c कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन इट कम्स टू कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स 6 monthly कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग होना चाहिए. अच्छा. थायराइड डिसऑर्डर्स में एवरी 3 to 6 months अपना TSH लेवल जो थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप जो भी थायराइड से सफर कर रहे हैं, ज़्यादा वाला या कम वाला थायराइड, करेक्ट, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू चेक योर TSH लेवल्स. सो अगर बीमारी है देन इट कम्स टू 3 monthly चेकअप और 6 monthly चेकअप. इफ बेसलाइन रिपोर्ट्स आर गुड देन ईयरली एनुअल हेल्थ चेकअप जो हम लोग बोलते हैं गुड इनफ फॉर एवरीबडी टू परफॉर्म एंड सी दैट बेसलाइन. ओके, थैंक यू फॉर दैट एडवाइस. डॉक्टर अद्रिता, हमें बताइए व्हाट इज़ द मोस्ट मेमोरेबल पेशेंट स्टोरी दैट हैज स्टेड विद यू टिल डेट. So ma'am, this is one part I wanted to talk to you about, is that you know how important it is for the patient's will to recover and also the patient's education about their diseases. I have seen recently, all of us have heard about GBS, Guillain-Barré syndrome, that has been happening in Pune, and even certain cases have happened in Mumbai. But Guillain-Barré syndrome, it is not a new disease. It has been there. We have seen these diseases years and years. It is not something that has newly come to the country or newly come to the state. Having said that, very recently, I think I would say around 3-4 months back, there was a patient of mine who developed Guillain-Barré syndrome. And she developed all 4 limbs paralysis to such an extent that she required complete ventilator support for her basic breathing and respiration. तो ज्ञान-बारी सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है? सो ये जो एक बीमारी है ना, इसमें आपका कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन अगर हुआ कोई ऑर्गेनिज्म से, जैसे अगर आप ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल पूछें, खाने की वजह से एक जंतु हमारे अंदर एंटर करती है जिसको कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी बोला जाता है. इट इज़ अ गट इन्फेक्शन, तो उससे डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट ये स्टार्ट होता है. और कुछ रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा, ये हमको फीवर, कॉफ, कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स करा सकती है, लोअर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स करा सकती है. सो ये सारे जो वायरसेस एंड बैक्टीरियाज हैं जो बॉडी में एंटर करती हैं, एक्चुअली इट इज़ एंटरिंग द बॉडी और बॉडी के जो वाइट सेल्स हैं वो बैक्टीरिया को मार के बॉडी को रिकवर कराने में मदद करती है. लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर मिमिक्री काम में आ जाती है. व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मिमिक्री? सो बेसिकली जो वाइट सेल्स बनती हैं, ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरियाज या वायरसेस होते हैं, इसके प्रोटीन्स हमारे बॉडी के सेल्स के प्रोटीन्स में कुछ कुछ सिमिलैरिटी रखती हैं, स्पेशली नर्व्स.
तो ये एंटीबॉडीज इंस्टेड ऑफ जस्ट डिस्ट्रॉइंग द वायरस और द बैक्टीरिया, वो हमारे जो सेल्स के नर्व्स में माइलिन शीथ होती है, जो कवरिंग होती है नर्व्स की, उसको डैमेज करने लगती है. अच्छा, So it is a तो ये damage कोई of भी the- ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है. स्पेशली द नर्व्स. नर्व्स. ओके. सो अगर इन्होंने माइलिन शीथ को अफेक्ट करने लगे, तो बेसिकली ये इंसुलेशन जो हमारे नर्व्स के ऊपर रहता है, वो सिग्नल ट्रांसमिशन में मदद करती है. अच्छा. माइलिन शीथ नहीं रहेगी तो नर्व टू नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन हो नहीं पाएगा प्रॉपर्ली. अच्छा. एज अ रिजल्ट पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम चालू हो जाती है आफ्टर 10 to 14 days ऑफ हैविंग द प्रीवियस इन्फेक्शन. और ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? पैरालिसिस. सो इसको Okay. बोलते हैं असेंडिंग पैरालिसिस. Yeah, तो ये sorry, I had to cut your question. You can continue No with your issues. story. So it starts off with the leg and then it goes above. अच्छा. So इसमें मेरे पेशेंट में भी तो ऐसा ही इसलिए हुआ ऐसा था. हुआ. Okay. एंड दे वेंट इनटू वेंटिलेटर सपोर्ट. अच्छा. अभी जब वेंटिलेटर सपोर्ट पे वो गए, सो 45-50 days वो वेंटिलेटर पे थे. इनिशियली इट वाज थ्रू द माउथ एंड देन वी हैड टू डू अ ट्रेक्योस्टोमी ऑल्सो एंड कनेक्ट हर टू द वेंटिलेटर. एंड इनमें 2 ऐसे टाइम्स आए जिसमें हर हार्ट स्टॉप्ड. वी हैड टू गिव हर CPR एंड लिटरली कार्डियक मसाज एंड ब्रिंग द हार्ट बैक टू इट्स फंक्शन एंड ऑल्सो गेट हर बैक टू लाइफ. सो ये 2 incidences ऐसे हुए इन द सेम पेशेंट. But once she recovered and she gained her consciousness, she kept on telling that I'm going to get better, I'm going to get better. And I have not seen such a fast recovery from Guillain-Barré syndrome as I had seen in her. She has gotten so much better that in the last visit, she herself walked to the OPD. Wow. And her tracheostomy is closed. She's absolutely fine now. And although there are some mild weakness that is pending, लेकिन वो physiotherapy उसको करा के and occupational therapy से the improvement is coming in her muscle strength. But it is so important that even if you are at the worst of your life, if you are able to keep the calm and most importantly the courage to fight, Calm and then- be mentally strong also. yes, and it is so important. It is not just because we are doctors we will give the treatment and the patient will recover. I am telling you, 2 patients, same treatment we give, the results vary. अच्छा. And it has a lot to do with courage, determination, and it has a lot to do with the responses that come from the patient also. So trust, courage and determination to get out of the disease is Correct. extremely important, especially for diseases like cancers and many other diseases which can cause chronic problems to the patient. Correct. Doctor, as we grow, our health changes. So, when people are 40, 50, and beyond, what are the preventive measures that they have to be aware of? That is also a very important question. So with every 10 decades, basically decade of aging that we are doing, we have to keep it in mind that everything changes around. So not only is it the health parameters, but also maybe what we were eating previously might not be able to be Yeah. digested in the same way it was being taken by our body previously. Correct. Also, our capacity of doing physical activity also reduces, because once you reach the retirement age, then previously you were so active, you were going to work, coming back from work. That is a lot of physical and mental exertion. Correct. All that takes a backseat, and you are living more of a sedentary lifestyle than what you used to live previously. So when it comes to all this, it is very important that we know that discipline has to be maintained. Achha. The eating habits have to change according to our digestion capabilities. If we feel that certain things we are eating and we are not tolerating it well, we need to eliminate it from the diet, and we need to be watchful of the timings. You know, you have to maintain the right time. Your breakfast, your lunch, your dinner has to be at a proper interval of time, and जो बोलते हैं sundown के पहले your dinner should be done. It is extremely important for better digestion. Achha. Sleep has to be good. It is important that you get at least 7 to 8 hours of uninterrupted sleep. जिसमें one big problem is digital detox. Digital India or digital world has caused a lot of havoc when it comes to sleep schedule. Correct. So couple of days back, I had a talk in one organization where I was just talking about mindfulness and about mental well-being, and most importantly about digital detox. Achha. Keeping your phone away from the bed, at least at a distance where you have to get up from the bed and bring the phone. At least 30 minutes before you go to bed. It should be 1 hour, but at least 30 minutes before you go to bed. Because when we are about to sleep, our mind needs rest. Sleep will not just instantly come. We need to bring that. So for that to happen, if we are seeing something which is aggravating our thoughts, it is not going to help us get a sound sleep. So that is extremely important to know exactly how many hours needs to be given to our body for rest. And another very important point that I want to touch upon is trying to reach the 10,000 steps goal.
So हाँ. basically what happens is these days, if we are able to, all of us, most of us have smartwatch. Smart, हाँ. If we are able to track our steps and keep a step count on a daily basis, and the watch actually gives us so many ways in which, they are completing the rings and they are giving us whistles and so many new things that are coming out from technology. This is a very good use of technology. If we can complete our 10,000 steps, we know that we are giving our body the adequate exercise it requires. So previously we used to say that an apple a day keeps the doctor away, but currently it should be 10K steps a day keeps the doctor away. That's very well said. So if you include it into your lifestyle, हाँ. so these three things about what you're eating, the amount of steps that you need to get per day, and most importantly your sleep schedule, so that your Correct. stress levels are at bay, and preventive health checkup. I cannot emphasize more on this, that it is extremely necessary that every year annual health checkup is done, and issues are picked up at a nascent stage. If they are picked up early, they are going to be treated in the best possible manner. Great. So, doctor, there are quick questions that I'm going to ask you. Just answer that quickly. What is the top lifestyle change that one should have regardless of age? As I just said to you, ma'am, 10K, 10K. a day. So every day it is important that you put in 10,000 steps. Okay. Yes. Is it important to take vitamin pills? I feel no. It is only to be replenished if the levels are low in the body. It is not one size fits all that you should take it every day irrespective of what your levels are. Okay. Calcium supplements are good or bad? Calcium supplements are good for women after menopause. They are good for people who are suffering from arthritis and bone diseases, and if your levels are low. Gluten diet is bad for all. Not true. Gluten is not bad for all, then it would have not lasted for so many years. I feel that if you're sensitive to gluten items, you can get it checked, and only then you should avoid gluten, not otherwise. Are genetics to be blamed for all your health problems? Not true. Okay. Genetics are not the only reason why health problems happen. Genetics just gives us a push. And after that, the health problems happen because of various other multi-factors, which is also lifestyle, diet, your stress levels, and so many other things. So yes, genetic is important, but not the only problem. So, Dr. Adrita, is there any piece of advice that you would like to give our listeners? Definitely. The one advice that I would like to give is that we always feel that we are doing good. There are no symptoms, that means there is no diseases. That is not true. We have come to know, I think, very much after this talk that there are so many diseases which are silent and which doesn't give us any indication. Correct. So please don't take that your health is absolutely going to be okay without doing much efforts towards it. Everything requires good investment so that you get good returns in the future. Just like you are doing your financial planning, you should also do your health planning, so that after retirement, as you are secure from your finances, that same security you get from your health also, because I think you start living another life when you retire, and that time has to be smooth and it has to be without any major glitches and major hurdles. करेक्ट. थैंक यू सो मच डॉक्टर अद्रिता. आपने गुड हेल्थ और बहुत सारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताया, एंड आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे, वेदर इट्स अबाउट डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम या मैनी अदर डिजीज़ेस. थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग माई पॉड टॉक. थैंक यू. Thank you so much for inviting. Thank you, ma'am. सो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात इंटर्निस्ट डॉक्टर अद्रिता बैनर्जी के साथ, जिन्होंने हमें इतनी सारी इंसाइट्स दी अबाउट वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, वेदर इट्स डायबिटीज़, हार्ट हेल्थ, फैटी लीवर और बहुत कुछ. और ये भी बताया कि लाइफस्टाइल की वजह से हमें कितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. हमारा आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पॉड टॉक विद एकता. थैंक यू.